کیا حال یہ امت نے زغرا بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، غربت بھی شکستہ ہے، کیا حال پیچھے کا بنایا ہے، یہ امت نے کیا صفدری ارے خیبری اب آپ کے سامنے الرحمن الرحیم قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین قل لا عسى لكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ کا حکم ہے، اجر رسالت کا معاوضہ مودت اہل بیت ہے۔ اسی آیت کی اتباع میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن کے احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے، آج اسی فاطمہ کی مزار کو مسمار کیا ہے، ہم اسی کا غم آیت مودت اللہ کے حکم سے منا رہے ہیں۔ میں بس اتنا ہی عرض کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، تمام اولیاء اللہ کی زائرین سے بالخصوص خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے زائرین ہیں، جب بھی وہ مزار پر جا کر زیارت کریں یاد رکھیں یہ جن کے غلام ہیں ان کے آقا کی شہزادی کی مزار مسمار اور یہاں پہ غلاموں کی مزار آباد ہے۔ بس اتنا یاد کر لیں اور ہمارے ساتھ احتجاج میں شامل رہے۔ میں جعفر حسین خلجی، حیدرآباد، دکن۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آج کا یہ دن یقیناً یوم سیاہ ہے اور ہمارے دل شکستہ ہیں، اور 100 سال سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں جب سے آل سعود نے بغض اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے روضوں کو مسمار کیا، اور جناب زہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا قاتلان فاطمہ زہرا پہ لانا، آواز بلند سلوات، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ یہ روضوں کو مسمار کیا، اور مسمار کرنے کے بعد یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے ان کے آثار کو مٹا دیا، لیکن تاریخ گواہ ہے قبروں کو مٹا دینے سے یا روضوں کو مسمار کر دینے سے نہ ہماری محبت میں کمی آ سکتی ہے، نہ ہمارے عشق میں کمی آ سکتی ہے، نہ ہمارے جنون میں کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ احتجاج اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم کل بھی عاشقان آل محمد سے آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک جنت البقیع دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتا۔ سلام الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی 8 شوال کی یہ قیامت کی تاریخ اسلام کا وہ سیاہ باب ہے کہ جس نے سارے عالم اسلام کے قلوب کو مجروح کر دیا۔ آج یہ ہمیشہ سے ایک عرصہ دراز سے اس تاریخ میں دنیا کے گوشے گوشے میں محبان اہل بیت، محبان رسول اور تمام وہ جو واقعاً کلمہ گو ہیں وہ سب اس احتجاج میں شامل رہتے ہیں، کیونکہ مسئلہ اہل بیت رسول کا ہے، مسئلہ خاندان رسول کا ہے، مسئلہ اصحاب رسول کا ہے، لہذا اس احتجاج میں سب شامل ہوتے ہیں۔ یہ عظیم الشان احتجاجی جلوس جو حیدرآباد دکن کے بمقام علاوہ بی بی دبیر پورہ سے
बरामद होता है और एक तवील जुलूस जिसमें हज़ारों की तादाद में मोमिनीन शिरकत करते हैं, हज़ारों की तादाद में कलमा गो शिरकत करते हैं और एहतजाज करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि दोबारा उसी मकाम पर जहाँ 1925 तक कुब्बे बने हुए थे, रोज़े बने हुए थे, दोबारा उन मकामात पर रोज़ों की तामीर की जाए, वो जन्नतुल मुअल्ला हो या जन्नतुल बकी। हम सब एहतजाज करते हैं और मुतालबा करते हैं कि वहाँ पर दोबारा जन्नतुल बकी के रोज़ों की तामीर की जाए। और हुकूमत हिंदुस्तान से भी ये तमाम शुरका एहतजाज करते हुए गुजारिश करते हैं कि अपने असरात का इस्तेमाल करें, हुकूमत आले सऊद पर अपने असरात को इस्तेमाल करते हुए दोबारा तामीर के रास्तों को हमवार करें और असबाब को मुहैया करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बीबी के अलावे के पास मौजूद हैं और यहाँ तमाम मोमिनीन और आलम इस्लाम आज का दिन जो गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि जन्नतुल बकी में जो अहले बैत अतहार के मज़ारात के साथ जो बेहुरमती की गई है वो कोई भी अहले ईमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, खा वो किसी भी तबके से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, क्योंकि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ईमान का अहम जुज़ है। और जब वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत ना हो तो ईमान ही कामिल नहीं है, तो गोया वो मुसलमान नहीं है। तो आज तमाम मोमिनीन और आलम इस्लाम को इस बात का दुख है कि हमारे अहले बैत अतहार जिनके सदक़े में ये कायनात का वजूद है और जिनके सदक़े में हमारी बख्शिश और नजात का भी ज़ामिन है, आज उनके मज़ारात के साथ जो बेहुरमती की गई है हम उसकी सख्ती से यहाँ पर मज़म्मत करते हैं और हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि उन मज़ारात पर जो इमारत पहले मौजूद थी वहाँ पर दोबारा तामीर किया जाए और दीगर मज़ारात के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है उसको फौरी बंद करना चाहिए। और ये नारा किसी एक तबके का नहीं है, किसी शिया सुन्नी का नहीं है, बल्कि हर अहले ईमान का है और इसको किसी तबके के तरफ जोड़ना ये सरासर नादानी है और ये कम अक्ली की दलील है। क्यों कि अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जिस बात का हुक्म दिया है कि ऐ लोगों मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह सुन्नत रसूल और एक मेरी आल है। तो जिसने आल से मोहब्बत किया उसने रसूल से मोहब्बत किया और जिसने रसूल से मोहब्बत किया उसने खुदा से मोहब्बत किया और जो अली का नहीं वो किसी का नहीं, ये हमारा ईमान है। तो हम यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए हैं और हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मज़ारात के साथ
जो बदतमीज़ी बेहुरमती की गई है वो वहाँ पर दोबारा वो मज़ारात की हिफाजत किया जाना चाहिए और वहाँ पर उसको दोबारा तामीर करना चाहिए, यही हमारा मुताबिक। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में अर्ज़ सलाम के बाद ये अर्ज़ करना है कि आज का दिन यौम सियाह है, 8 शव्वाल, जिसे शियान हैदर कर्रार यौम सियाह के तौर पर मनाते हैं। क्यों? आज के दिन आले सऊद ने रोज़ों को मिस्मार कर दिया। किन के रोज़ों को मिस्मार कर दिया? जो सरकार दो आलम ख़त्मी मर्तबत हुज़ूर सरवर कायनात के लख्त जिगर थे, जो जवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिमुस्सलाम और अज़वाज रसूल असहाब रसूल के रोज़ों को मिस्मार कर दिया गया। और आज अगर कोई एहतजाज कर रहा है और आवाज़ एहतजाज बुलंद कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह रसूल को भी चाहता है, आले रसूल को भी चाहता है। रसूल और आले रसूल से मोहब्बत का सबूत अगर दे रहे हैं तो इस एहतजाज के ज़रिए से दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इस एहतजाज में वही शरीक होगा जो रसूल से मोहब्बत करेगा, इस एहतजाज में वही शरीक होगा जो आले रसूल से मोहब्बत करेगा। क्या बात है कि रोज़ों को मिस्मार कर दिया जाता और उम्मत मुस्लिमा खामोश बैठी हुई है। नहीं, 100 साल गुजर गए और उम्मत मुस्लिमा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। क्या बात है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार नहीं होती? आज बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? या आले सऊद को उठाना पड़ेगा, इन्हें जगाना पड़ेगा, इन्हें बेदार करना पड़ेगा और इन्हें यह समझाना पड़ेगा कि हम रसूल आले रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं। तुमने शिर्क के नाम पर, तुमने इस्लाम के कवानीन के खिलाफ वर्जी हो रही है, इस बिना पर फतवे लेकर रोज़ों को मिस्मार कर दिया। लेकिन आज सऊदी अरब में अय्याशी का वो कौन सा काम है जो नहीं हो रहा है? शराब भी वहाँ बेची जा रही है, सिनेमा घर वहाँ पर लाए गए हैं, म्यूजिक कंसर्ट वहाँ पर हो रहा है, जुआ वहाँ पर खेला जा रहा है। अब मुफ्तियान किराम कहाँ है? वो मुफ्ती कहाँ है जिन्होंने इन रोज़ों को मिस्मार करने के लिए फतवा सादिर किया था? अब क्यों कलम की स्याही सूख गई है? अब क्यों फतवे सादिर नहीं होते? क्या ये शिर्क नहीं है? क्या ये इस्लाम के कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये इस्लाम के कानून और तालीमात की धज्जियाँ उड़ाना नहीं है कि सरजमीन वही पर नाच गाना किया जाए और मुफ्ती खामोश रहे, सरजमीन वही पर म्यूजिक कंसर्ट किया जाए और मुफ्तियान किराम खामोश रहे? नहीं, ये मुफ्ती वाला मसला नहीं है, ये बुग़्ज़ अहले बैत वाला मसला है कि रसूल आले रसूल से जिसकी वजह से रोज़ों को मिस्मार किया गया। कोई बात नहीं, मगर हम एहतजाज करते रहेंगे और उस वक्त तक हमारा ये एहतजाज जारी वो सारी रहेगा जब तक जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर नहीं हो जाती। 100 साल हो गए, ना एहतजाज में कमी आई, ना मोहब्बत में कमी आई, ना इश्क में कमी आई, ना हमारे जुनून में कमी आई। इसका मतलब यह है कि हम बेदार कौम है और हमेशा बेदार रहेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबिही नस्तईन वहुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज की ये 8 शव्वाल की तारीख़ इस्लाम का वो स्याह बाब है कि जिस पर ता क़यामत आलम इस्लाम को शर्मिंदा होना चाहिए। इस तारीख़ में आज से 100 बरस पहले आले सऊद ने जन्नतुल मुअल्ला जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में है, जिसमें अजदाद पैगंबर और दीगर ख़ानदान पैगंबर के अकाबरीन और बुज़ुर्गों की क़बूर रहीं, उनको मिस्मार किया गया। और यही वो तारीख़ है कि जिसमें अइम्मा बकी हमारे 4 इमाम, इनके रौज़ाए मुक़द्दसा जो कि गुंबद की सूरत में बाकायदा तामीर थे, उनको मिस्मार किया गया। क़ब्र फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बिनते पैगंबर को मिस्मार किया गया। न सिर्फ़ ये कि आले पैगंबर की क़बूर को मिस्मार किया गया, बल्कि 10,000 से ज़्यादा
असहाब की भी कब्र जो जन्नत उल-बकी में थी उन सबको मिस्मार किया गया। मिस्मारी का ये सिलसिला इस तरह से जारी व सारी था, सारा आलम इस्लाम और ख़ासकर तुर्की के उस वक्त शदीद एहतजाज की बुनियाद पर रोज़ा पैगंबर को रोक दिया गया कार्रवाई को, वरना शायद रोज़ा पैगंबर को भी उसी वक्त मिस्मार कर दिया जाता। और ये हमारा एहतजाज सिर्फ़ इसीलिए हमेशा आज की तारीख़ में ये कोई शियों का एहतजाज नहीं है, बल्कि तमाम आलम इस्लाम का एहतजाज है, क्योंकि जन्नतुल बकी आलम इस्लाम के लिए एक मुहतरम मकाम और एक मुहतरम जगह है, और उसकी मिस्मारी के लिए सारे आलम इस्लाम के क़ुलूब शिकस्ता हैं। और यकीनन आप भी जब जाएं, अल्लाह आप सबको लेके जाए, नाज़रीन को और हम सबको ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। दिल कलेजा कबाब होता है, एक तरफ बाप का रोज़ा जिस पर इस कदर रोशनी रात के वक्त अगर आप देखें और दिन के वक्त भी एक साया, लेकिन हाय बिनते पैगंबर की कब्र रात के अंधेरे में और दिन में सख्त धूप में और बिला किसी साए के, यहाँ तक कि निशान कब्र को भी मिटाया गया। हमारा एहतजाज इसलिए है कि हम चाहते हैं कि उसे आले सऊद जल्द अज जल्द तामीर करें। हमें सिर्फ इजाज़त चाहिए, हमें उनसे उसकी तामीर के लिए कोई ताउन नहीं चाहिए। हमें इजाज़त दी जाए, तमाम आलम इस्लाम मोमिनीन इंशाअल्लाह एक आलीशान रोज़े की तामीर करेंगे। हमारा सख्त एहतजाज है और अपने इस एहतजाज के साथ हम अपने हुकूमत हिंदुस्तान से भी अपील करते हैं कि आले सऊद पर, सऊदी हुकूमत पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि वो पैगंबर की बेटी और अहले बैत पैगंबर और असहाब पैगंबर और अम्महात पैगंबर और अज़वाज पैगंबर की जो कबूर मिस्मार की गई थी उनकी दोबारा तामीर कराई जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बुल करीम फ़ी मुहकम किताबिम मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन कराम, हाज़रीन नाज़रीन, आपकी खिदमत आलिया में हक़ीर मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन खिलजी गवर्नमेंट शिया काजी हैदराबाद तेलंगाना सबसे पहले अर्ज़ सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने जिस आय मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, वक्त का लिहाज रखते हुए दो जुमलों में अर्ज़ कर दूँ। सारी मेहनत रिसालत को अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तराजू के एक पल्ले में रख दिया, दूसरे पल्ले में मवद्दत अहले बैत रख दिया। अब जितने कुरान पढ़ने वाले मेरे भाई हैं, कलमा गो मेरे भाइयों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि ज़रा इस पर फ़िक्र करें कि अल्लाह ने जिससे मवद्दत का हुक्म दिया, उन जिनसे मवद्दत का हुक्म दिया, वो अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम में किसी एक को भी तबाही मौत आई या कत्ल किया गया, कितना जुल्म किया गया। और अल्लाह कह रहा है कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तो अब जुल्म में जिंदा रहे तब भी जुल्म हुआ, शहादत के बाद भी जुल्म करना, ये कितना बड़ा जुल्म है आप ये बताइए, गौर कीजिए। अल्लाह ने जिससे मवद्दत का हुक्म दिया, मरकज़ आयत तथहीर क़ल्ब रसूल शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा की ज़िंदगी सिर्फ 18 साल की ज़िंदगी थी। 18 साल में आप दुनिया से गुजर गई। इतना जुल्म हुआ, दर जलाया गया, असा का सहारा लेकर चल रही थी। उसके बाद आप सरकार की खिदमत में आपको दफन होने नहीं दिया, फिर आप बकी में दफन किया गया, तो बकी में भी आपकी कब्र को मिस्मार कर दिया गया। बस दावत फ़िक्र एक जुमले में मैं देना चाहता हूँ, आप अहले बैत से मवद्दत करने वाले हैं, कुरान के हुक्म पे इत्तिबा करने वाले हैं, तो आपसे मेरी ये गुजारिश है, जब आप अहले बैत से मवद्दत करते हैं तो क्या अहले बैत से ज़्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं? तो आप कहेंगे कि हरगिज़ नहीं। तो आप तसव्वुर कीजिए, अगर आपको कोई इत्तला आ जाए कि किसी के रिश्तेदार की खबर को तोड़ा गया, तो किस तरीक़े से वो आदमी अपने घर से निकलकर एहतजाज बुलंद करते हुए दौड़ेगा।
اور کیا عمل کرے گا وہ غور کر لیجئے. بس یہی فطرت بشریت پر اسلام ہے. فطرت میں یہ ہے کہ رشتہ داروں کی بھی مزار کو مسمار کر دیا جائے. تو آج لوگ مشتغل ہو جاتے ہیں اور احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تو پھر جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، وہ رسول کی بیٹی، وہ رسول کا قلب، وہ آیت مودت کی مرکز، آیت تطہیر کی مرکز، دونوں جہاں کی شہزادی جن سے مودت کرنا واجب ہے، ان کی مزار کو آج مسمار کر دیا گیا. تو آپ کا اور ہمارا گھر میں رہنا کیا مناسب ہے؟ یہ بات غور کر لیجئے. شہزادی کونین کے غلام خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بڑی مزار مبارک ہے. تو جتنے زائرین ہیں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کی زیارت کرنے والے، ان سے میری گزارش ہے کہ جب بھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کی زیارت کریں تو بقی کو بھی یاد کر لیں، جنت البقی کو بھی یاد کر لیں کہ یہ غلام کا یہ حال ہے تو شہزادی کا کیسی مزار ہونا چاہیے. آج اندھیرے میں ہے، چراغ کوئی جلانے والا نہیں ہے. بس یہی میرا معروضہ تھا آپ سے کہ آپ بھی ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائیں. ہم تو ہمارے دم تک احتجاج کریں گے. وہ دن دور نہیں کہ جنت البقی تعمیر ہوگی، برابر تعمیر ہوگی. جس ملک میں جوئے خانے، شراب خانے کھولے جا رہے ہیں اور وہاں پہ مزارات کو تعمیر نہیں کیے جا رہی ہے، جس اہل بیت سے مودت ہماری واجب ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تمام میڈیا والوں کو، تمام عزاداروں کو، اہل بیت سے مودت کرنے والوں کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ ظلم کی تائید میں شامل، چپ رہنا بھی ہے ظلم کی تائید میں شامل. حق بات کہو، جرت اظہار نہ بیچو. حضرات و ناظرین، میں میر ہادی علی، صدر آل انڈیا شیعہ آرگنائزیشن، سابق شیعہ ممبر آندھرا پردیش اسٹیٹ وقف بورڈ، یہاں پر میں حسینی آرگنائزیشن کے زیر اہتمام منعقدہ ایک احتجاجی ریلی میں علائے بی بی میں شرکت کرنے آیا ہوا ہوں. میں نے دیکھا اور ہماری آرگنائزیشن نے مسلسل یہ آواز اٹھاتے آئی ہے حکومت سعودی عربیہ کے خلاف کہ جو انہدام جنت البقی کو وہاں کی حکومت آل سعود نے کیا تھا، اسے دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کا مسلسل آواز اٹھائی جا رہی ہے. نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے دیگر تمام شہروں میں بھی اس طرح کی آواز اور احتجاج بلند کیا جا رہا ہے. یاد رکھو، ظلم ہمیشہ چلنے والا نہیں. محمد بن سلمان ہوش کے ناخن بھانپ لیں کہ انہیں آج جس پالیسی کے تحت وہ اسرائیل حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، وہی اسرائیل انہیں لے ڈوبے گا. یاد رکھو، ہمیشہ جو آواز حق کی آواز ہوتی ہے، ہمیشہ وہ آواز بلند ہوتی ہے. حق کی آواز میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے. یقیناً اب وہ دن آ گئے ہیں، انہیں مجبوراً جنت البقی کو تعمیر کرنا پڑے گا. آج ہم سب یہاں پر پروٹیسٹ اسی واسطے کر رہے ہیں، وہ یاد دلا رہے ہیں اور موقع دے رہے ہیں کہ انہدام جنت البقی جس مقام پر انہدام کیا گیا تھا اسے دوبارہ شامل کیا جائے. آل انڈیا شیعہ آرگنائزیشن اپنے تمام اراکین کے ساتھ، میں بحیثیت قومی صدر تمام ہندوستان کے 7 کروڑ شیعہ مسلمانوں کی جانب سے اپنی آواز، اپنا احتجاج بلند کر رہا ہوں. شکریہ. جے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفی القرآن الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام و حاضرین اکرام، سید ہیومن جسٹس آرگنائزیشن کے ممبران، ہمارے خیر الدین صاحب صوفی کونسل اور دیگر حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ہم کو یہاں پر مدعو کیا گیا ہے. اس کی بنیاد پر ہم یہاں پر آئے ہیں. انہدام جنت البقی کے متعلق یہ تقریباً 100 سال سے آل سعود کے لوگوں نے جو منہدم کیے ہیں ازواج رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ کے جو مزارات مقدسات کو جو ہے نا منہدم اور مسمار کرنے کی ناکام سازشیں رچے ہیں، اس کے متعلق ہم ان کے ساتھ مذمت کے لیے یہاں کھڑے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو مزارات کو منہدم کیے ہیں دوبارہ وہاں پر تعمیر کی جائے. اس مطابق ہم تمام یہاں پر ایک جگہ جمع ہو کر کے ہم ان کی مذمت میں ہم بھی شامل ہیں. ہم دعا کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جس جگہ پر جو مزارات منہدم کیے ہیں وہ دوبارہ پھر سے تعمیر کی جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.